फिर से एक बार इस आखिरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। My dear friends and beloved brothers sisters, I'd like to welcome all of you in this last class for the confirmation purpose, which is the 5th class in a row. And I hope that as we have studied various things in this class, we have tried to understand the deep meaning of church membership. Now in these classes I have not taken other things like we need to memorize the Apostle Creed, or we need to pray in the church in corporate prayers or worship and other things, and the pastorate committee, pastorate conference, church auxiliaries, because once you become the member and start attending the church with all responsibilities, you will understand and it will be informed to you time to time. But we are taking certain things which are very, very important in our life as a church membership. And I want you to be very, very precise and very clear about all these things. We have seen in the beginning, we saw about the Beatitudes, which is the constitution of the kingdom of God. Then we studied about new birth. And then we studied about the meaning of church membership from the discipline book of point of view. And then how to live a victorious Christian life, a life with God's blessing in abundance. And this class will be about Holy Communion. प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में जो क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं, हमने पहली क्लास में स्वर्ग के राज्य के बारे में उन बातों को देखा जो भी एटीट्यूड्स हैं, धन्यवादियां हैं। वहां 8 धन्यवादियां हैं जहां परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उन बातों को कहते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है समझने की आवश्यकता। फिर हमने देखा नए जन्म के बारे में कि नया जन्म क्या है, और उसके बाद मैंने आपके सामने हमारे बुक ऑफ डिसिप्लिन से कुछ बातों को बताया जिसका संबंध हमारे चर्च मेंबरशिप से है, कलीसिया की सदस्यता से है। और फिर हमने देखा कि हम किस प्रकार से जयवंत और फलवंतित मसीह जीवन जी सकते हैं। और आज जो ये आखिरी क्लास हम देखेंगे, प्रभुभोज क्या है और प्रभुभोज का अर्थ क्या है। पर इससे पहले कि हम इसको देखें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। और आज जबकि प्रभु हम इस व्यापक विषय पर चर्चा करते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमारी सहायता और मदद करें, हर एक सीखने वालों की सहायता करें, ताकि ये वचन प्रभु हमारे लिए आशीष का कारण बने। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते हैं जो बाइबल में लिखा है पवित्र भोज के लिए, इकोरिस्ट के लिए, होली कम्युनियन के लिए, और वो पाया जाता है कुरिन्थ की पहली पत्री उसका 11 अध्याय उसके 23 पद से। वी रीड अबाउट द मीनिंग ऑफ होली कम्युनियन इन 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards, and I'll read it for you first in English and then in Hindi. 23 onwards. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whosoever therefore eat this bread or drinks the cup of the Lord in any unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup.
हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, जिसका जो इस प्रकार से लिखा है। संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वा गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। और इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तब तक प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए स्मरण करते हो और प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु के इस विधि का वर्णन हमारे सामने स्पष्ट रूप से किया गया है और हम इन बातों को बहुत ही अच्छे से जाने। मैंने सोचा कि 4 क्लासेस में हमने उन बातों को देखा जिनका संबंध हमारे जयवंत जीवन से है, जिसका संबंध हमारे धन्यवाद प्रभु के धन्यवादिया से है, जो उसने कहा कि धन्य वे हैं। और वो जो पाठ हमने पढ़ा दूसरे क्लास में, उसका संबंध मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 1 से 12 पद तक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे मैथडिस्ट के डिसिप्लिन में क्या क्या बातें हैं जिनका संबंध कलीसिया के अर्थ से है। कलीसिया क्या है इसके बारे में, अब पूरी मेंबरशिप के बारे में, अब पूर्ण सदस्यता के बारे में। और फिर हमने देखा कि हम एक जयवंत मसीह जीवन कैसे जी सकते हैं 4थे क्लास में, या हम एक भरपूर मसीह जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज जो हमारा पाठ है, मैं बहुत सोच रहा था कि मैं इसके बारे में आपसे क्या कहूं, क्योंकि जो बहुत सी बातें बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे जरूरी जो है एक पूरी शराकत के अंदर, वो है प्रभुभोज की विधि। ये क्या है? मात्र ये नहीं कि आप देखेंगे और आप खुद आने लगे हैं, आप आके घुटने टेकेंगे और प्रभु के उस देह को स्वीकार करेंगे उस वेफर्स के रूप में जो उसकी देह है, और फिर आपको छोटे से कप में वाइन दिया जाएगा जो प्रभु के लहू को इंगित करता है। लेकिन इसका आत्मिक अर्थ क्या है, इस पर हम थोड़ा गौर करेंगे और मैं सोचता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों हमें उसके बारे में जानना। डियर फ्रेंड्स, द होली यूकेरिस्ट और द होली कम्युनियन इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट command that Jesus gave to his disciple. As St. Paul says here that for I received from the Lord what I also delivered to you. मैंने प्रभु से प्राप्त करी जिस रात वो पकड़वाया गया, और इसी बात को मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को ये दर्शन दिया। हालांकि जो घटना थी प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे और प्रचार कर रहे थे, तो पौलुस यीशु मसीह का चेला नहीं था। वो एक फरीसी था, बन गया फरीसी, और आगे उसने कलीसिया को सताया। और ये स्वाभाविक है। आज भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि सुसमाचार के अर्थ को समझ नहीं पाते। लेकिन वो हमारे लिए उतना ही सम्मानीय है जितने दूसरे लोग हैं। हम उनका भी सम्मान करते हैं, उनका भी आदर करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भी प्रभु के संगति को पहचाने और प्रभु के प्रेम के प्रति अपना प्रत्युत्तर दे। तो ये जो परिपाटी है, ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा हमें दी है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करेंगे और अपने मन को तैयार करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो हम पढ़ते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि इसको हम समझें, इसलिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु, हम दोबारा आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें ताकि हम प्रभुज की विधि को समझ सके। प्रभु, ये बहुत ही पवित्र और आदर के योग्य और हमारे लिए एक सौभाग्य है कि हम हमारे उस प्रभु के देह में और उसके लहू में एक होते हैं, जिसके लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दी। इसलिए प्रभु, हम अपने को जांचें और इस प्रथा के अंदर अपने आप को रखें, इस विधि के अंदर प्रभु जो आपकी आज्ञा है, जिससे हम आपकी संगति में बढ़ते चले जाएं। हमारी सहायता और मदद करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ जो ये विधि है उसको हमने देखा, उसके बारे में पढ़ा और उसके बारे में जो बातें हमें समझनी थी हमने उसको समझा।
लेकिन अब हम इस पर थोड़ा गौर करेंगे, इसके विधि के बारे में, इसकी मुख्यता के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, कि क्यों प्रभु ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया हमारे विश्वास रूपी जीवन में। प्रभु एक ऐसा संस्कार है जिसको स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्थापित किया था। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय के 26 से 29 पद को देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसकी स्थापना की बात की गई है। इफ यू रीड द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू chapter 26 verse 26 to 29, you will clearly understand that Jesus constituted this great command that he gave and this holy institution for the edification of the church, ताकि कलीसिया इसमें आगे बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ केवल एक बार इसका आयोजन किया, गसमनी के बाग में प्रार्थना के लिए जाने से पहले। द लॉर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ इन दिस वर्ल्ड, लास्ट इवनिंग, बिकॉज द फॉलोइंग डे ही वॉज क्रूसिफाइड, देन ही डाइड एंड देन ही वॉज बरीड एंड देन ऑन द थर्ड डे रोज फ्रॉम द डेड। सो दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ आवर लॉर्ड वेयर ही ऑब्जर्व्ड दिस यूकरिस्ट विथ हिज बिलवेड डिसाइपल्स ऑन द अपर रूम। प्रभु यीशु मसीह ने यह विधि अपने चेलों के साथ मानी उपरोटी कोठरी में अपनी मृत्यु के ठीक पहले रात को, या जब वो दुनिया में था आखिरी रात को उसने अपने चेलों के साथ इस विधि को माना, जो फसह का त्योहार भी था। इस प्रथम भोज की कथा में बहुत सारी बातें पाई जाती है, लेकिन हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो हमारे लिए जानना जरूरी है। डियर फ्रेंड, देयर आर मेनी थिंग्स अटैच्ड टू दिस फर्स्ट experience with the disciples, but the last supper, because he might have had many suppers with his disciples, because they were walking with him for almost 3.5 years. और इन 3.5 सालों में प्रभु ने कई बार उनके साथ भोजन करा होगा, दोपहर का भोजन करा होगा, सुबह का नाश्ता भी करा होगा। लेकिन ये जो भोजन है बहुत ही यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ एक नई वाचा की बात करते हैं। जीसस स्पीक्स टू हिज डिसाइपल अबाउट द न्यू कवनेंट, and therefore this is a very, very, very important observance, very important ordinance of our Lord Jesus, which is connected with the new covenant. Now the old covenant was given to the people of Israel in the Mount Sinai. I read about that in Exodus chapter 20. But this is new covenant. And in almost all the gospel you read about it, but here precisely in 1 Corinthians chapter 11, 23 onwards. अब यहां पर जो मुख्य बात है इसको हम थोड़ा देखें, कुछ बातों को समझें। पहली बात जो है, ये प्रभु मेज पर इकट्ठे होते हैं, परंतु उनकी यह संगति इस विवाद के कारण धूमिल पड़ जाती है कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। जीसस नाउ हैज प्रिपेयर्ड the Eucharist or Holy Communion or the festival of Passover with his disciple in the upper room. But one of the great controversy that came, who is more important in God's kingdom, who is the higher person. और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 24 से 30। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 24 से 30। और मैं सोचता हूं कि हमें से हर एक को जो प्रभु के विश्वासी हैं, कई सालों से कलीसिया के सदस्य हैं, अंग है, हमें भी इस बात को जानने की आवश्यकता है कि प्रभुभोज के समय जो पहला प्रभुभोज हुआ वहां क्या क्या घटना घटी। हम सारी बातों को नहीं देखेंगे, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 24 से 30। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय चेलों के पैर धोए जब उनके बीच में कंट्रोवर्सी थी कि हम में से बड़ा कौन है। मित्र, ये जो सवाल है आज भी है। हम धन के पीछे भागते हैं, हम पद के पीछे भागते हैं, हम अधिकार के पीछे भागते हैं, और हम बहुत सी बातों के पीछे भागते हैं। डियर फ्रेंड, ऑन दैट लास्ट सपर विद द लॉर्ड, व्हेन दे गैदर्ड फॉर द कम्युनियन और फॉर द लास्ट सपर, one of the greatest questions that came among the disciple was, who is greater than us? हमें से सबसे बड़ा कौन है? Among us who is the greatest? And that was a controversy
and Jesus could perceive that in the spirit, and he was hurt. Because the disciples who were walking with the Lord for almost 3.5 years were not able to understand what could be the situation of our Lord, who has been caring for us, who has been teaching us about humility, and now we fight about who is greater in the kingdom of God among us. मित्रों, आज भी शायद यही बात हम करते हैं कि हम में से कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कलीसिया में, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, हम शायद थोड़ा ज्यादा चर्च फंड देते हैं या टाइट देते हैं, या हम कलीसिया के लिए ज्यादा कुछ कार्य करते हैं, हम कलीसिया के काम में इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, इसलिए हम कलीसिया के अंदर ऊंचा स्थान प्राप्त करें, और यही बात हमारे जीवन में रहती है। लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर क्या जवाब दिया? अगर आप देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 से 20 पद में, तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए। जीसस वॉश्ड द फीट्स ऑफ द डिसाइपल्स, एंड वी रीड अबाउट दैट in St. John's Gospel chapter 13 verses 1 to 20. This was the reply of Jesus. Not talking about the humility, not discussing about the humility of Jesus, he acted and showed them who is humble. He washed the feet of every disciple, even St. Peter also. And then he said, now you may not understand the meaning of this, but later on you understand. प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि इस बात को जाने, और उसने कहा कि अब तुम इस बात के अर्थ को नहीं जान पाओगे, लेकिन आगे चल के समझोगे। द मास्टर, द लॉर्ड ऑफ होल यूनिवर्स, स्टार्टेड वॉशिंग देयर फीट। कैन यू फाइंड मोर इंपॉर्टेंट और मोर प्रैक्टिकल टीचिंग ऑफ ह्यूमिलिटी रेदर देन दिस? इज वेरी 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 रेयर. It may not be found anywhere. He said, you call me Lord, you call me Savior, you call me Lord, and I know that I am that. I am He. But being a leader of your group, being the Lord of your life, I am bending down and I have just washed your feet. The teaching was, when you partake in my supper, communion, you commune with each other. Know that you are servant. You are servant. You are destined to be servant here in this world. मित्रों, जब हम इस बात को महसूस करते हैं कि इस प्रभु भोज की जो विधि का जो अर्थ है हमारे जीवन के लिए इतना व्यापक है कि प्रभु चाहता कि हम इस बात को जाने कि प्रभु ने कहा कि तुम लड़ाई मत करो, तुम्हारे बीच इस बात की लड़ाई ना हो कि हम में से बड़ा कौन हो जाएगा, लीडर कौन बन जाएगा। वो दुनिया के लोग सोचते हैं, दुनिया के लोग सोचते हैं, उसके लिए बहुत प्रयत्न भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन तुम एक दूसरे के सेवक बनो, क्योंकि मैं इस दुनिया में सेवक बन के आया। और इसके लिए हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से 11। वो जो सब कुछ था, वो सारे ब्रह्मांड का मालिक, बनाने वाला, जीवन देने वाला, खुद शून्य हो गया और एक दास का स्वरूप उसने धारण करा। अब दास का स्वरूप धारण करके उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उसके शिष्य इस बात को देखे और जाने। फिर यहां लिखा है कि उसने इसके बाद रोटी ली और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, और रोटी तोड़ के उसने कहा कि ये मेरी देह है। लूका 22 अध्याय 19 पद को देखिए, आप पढ़ सकते हैं इसमें। लूका 22 अध्याय को रीड अबाउट दिस इन लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 22 and 19 verses. Took the bread and broke it and said, this is my body. This is my body. I think this needs to be understood very clear. हम इसके मतलब को जानने की आवश्यकता है। जब झगड़ा हो रहा था उनके बीच में, तब यीशु मसीह ने भोजन के बाद रोटी लिया, कहा ये भोजन के समय रोटी ले, उसने कहा कि ये मेरी देह है, और तोड़ी उसको। ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड has a unique meaning, and that is, unless until you are broken by the Lord, by the power of the Holy Spirit, you cannot be blessing to many people. तोड़ना जरूरी था। दूसरा अर्थ कि अगर वो तोड़ा नहीं जाता तो हम प्रभु में जोड़े नहीं जाते। यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ने दिया क्रूस पर, ताकि हम जो उससे दूर थे, हम उसके बैरी थे, उसके साथ जोड़ दिए जाएं। यीशु ने कहा, यह मेरा बदन है। Jesus said, this is my body which is broken for you.
so that you are united in my kingdom, in my body. In my body. It was a divine operative symbol that how we are grafted in his body, because it was broken for me and you. On the following hours, the early hours, he was condemned by the Jews and the Pilate. He pronounced the verdict that I give this person to be crucified, to be offered for you and all of us. And that was the meaning of Jesus being condemned to be crucified on the cross. तो उसने कहा कि मैं अपने आप को देता हूं, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसके बाद उसने प्याला लिया और कहा, परमेश्वर को धन्यवाद देकर कि यह मैं तुम्हें देता हूं, ये नई वाचा में मेरा लहू है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 20 पद में कहते हैं, ये उसने प्याला के लिए धन्यवाद दिया, उसने कहा कि ये नई वाचा में मेरा लहू है। उसके बाद उन्होंने उससे भोज में भाग लेकर लिखा है कि वहां से धन्यवाद के साथ वहां से गीत गाकर चले गए। वे गीत गाकर, भजन गाकर वहां से निकले और गत्सेमने की बाग की ओर गए, जहां अब यीशु मसीह के जीवन में वह वक्त आ रहा था जब वो व्याकुल हो जाता है। इसके लिए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 30 और 36 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 30 और 36 पद। Dear friend, we read here in this entire happening of the Holy Communion, how Jesus could teach them practically that you are not to fight with each other, that who is greater than among you, because I, being your leader, being your Lord of your life, I am going to wash your feet. So remember, if you want to follow me, try to be a servant. अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो मेरे बच्चों, मेरे शिष्यों, तो मेरे समान तुम एक दूसरे की सेवा करो. And it is the true Christianity. In love we serve each other. In love we serve each other. Mother Teresa, a great example of God's gospel, or the gospel of Lord Jesus Christ, she humbled herself. For many years, she served the poorest of poor, who will not return anything to her. They were not able, but yet she served. And the Sister of Charity is one of the great examples in this whole world of the servanthood of our Lord and Savior Jesus Christ. Many others have served. Recently, we had witnessed a martyrdom of Dr. Graham Steen. He served the poor people, the leprosy patient in Manoharpur area, in Badipada, and then he offered himself. He was killed with his small 2 kids. But there was an offering. And she served the people of those area, the leprosy patient, with love and care. True servanthood of our Lord Jesus Christ. Today in the church, what is my objective of my life as a follower of Jesus Christ? Am I willing to serve each other in all humility and all sincerity and all dedication? आज जब मैं मसीह हूं, तो क्या मैं सचमुच में सेवा करना चाहता हूं या चाहती हूं? क्योंकि मैं उसका विश्वासी हूं. हमें इस बात पर गौर करने की और ध्यान देने की जरूरत है. हम आगे यहां देखते हैं कि इस प्रभुज की रीति का अभिप्राय क्या है. वी सी नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होली यूकरिस्ट और होली कम्युनियन और लास्ट सपर. हम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और बिना पापों की क्षमा प्राप्त किए हम इसमें भाग नहीं ले सकते हैं. मतलब क्या है कि अगर हम इस भोज में भाग लेते हैं तो अवश्य है कि उस समय हमने अपने आप को जांचा है और ऐसे भी हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किए हैं. और उसके लिए जरूरत है कि हमने अपने पापों को माना है. ये उनके लिए है जिनके पाप क्षमा किए गए हैं, जिनके जीवन में प्रभु का अनुग्रह हुआ है और जो इस बात को जानते अनुभव से कि प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा करके मुझे अपने परिवार का अंग या सदस्य बनाया है. इस संस्कार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी सहभागी होने वाले को क्षमा प्रदान कर सके ना. इस बात को हम समझें. दिस वंडरफुल
institution doesn't have any power to forgive us. क्योंकि ये तो एक परिपाटी यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी, एक नई वाचा उसने बांधी, तो उस वाचा में कोई ताकत नहीं है कि हमारे पाप क्षमा की जाए। तो हमारे पाप क्षमा कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं। उसका लहू हमारे पापों के क्षमा की गारंटी है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं या करा हमने, तो हमने पापों की क्षमा को पाया है और प्रभु ने हमें नया जीवन प्रदान करा है। प्रभु हमारी सहायता और मदद करता है। हम प्रभु भोज में यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के लिए उसमें सम्मिलित होते हैं। वी कम फॉर द होली कम्युनियन बिकॉज इन ओबीडियंस विद द कमांड ऑफ जीसस। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसके 23 से आगे, 23-24 पद और उसके आगे के पदों को पढ़ते हैं, जहां पर उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। पौलुस कहता है जैसे मुझे प्रभु से प्राप्त हुआ। तो ये हमारे द्वारा प्रभु भोज में भाग लेना, प्रभु की आज्ञा को मानना भी मित्रों। असली जब हम आते हैं तो बड़े दिन तक आते हैं, ऐसे करके हम बैठते हैं, घुटने टेकते हैं और फिर उसके रोटी में, उसके बदन में हम शरीक होते हैं और उसके लहू में हम शरीक होते हैं। ये हमारे लिए रिमेम्बरेंस है, यादगारी है प्रभु के मृत्यु की, ताकि हम बार बार इस बात को जाने कि आज अगर हम प्रभु के राज्य में हैं, उसकी कलीसिया में है, उसके लोगों की संगति में है, ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रभु जो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, एक दिन आया था उसके जीवन में, आज से लगभग 2000 साल पहले, जब उसको क्रूस पर लटकाया गया और उसने वेदना सही, असहनीय, और उसने वहां अपनी जान दे दी। तो इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। हम इसके बाद प्रभु के शीघ्र आगमन की यादगारी में भी इस बात को करते हैं कि जब तक वो दोबारा ना आए, हम इस नियम को, इस प्रभु के द्वारा स्थापित नई वाचा के पर्व को मानते हैं, नई वाचा के इस पर्व को याद करते हैं। हम प्रभु की मृत्यु को इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि प्रभु की आज्ञा हमारे लिए है। दिस इज द कमांड ऑफ क्राइस्ट। कोई व्यक्ति इस भोज में इसलिए सम्मिलित नहीं होता कि वह उसके योग्य है। We don't participate in the Holy Eucharist because we are worthy. No one is worthy. क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा किए जाते हैं, हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं, और इसीलिए हम उसके परिवार में हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसके परिवार में उत्पन्न हुए हैं। हम सब मेल मिलाप में रहते हैं और उसके साथ उसकी संगत में, उस भोजन में भाग लेते हैं। प्राथमिक कलीसिया में हर शाम को ये प्रभु भोज की विधि करते थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। टेक्नोलॉजी तो अब बढ़ा है, विकसित हुआ, उस समय इतना नहीं था। केवल वो दिन भर प्रभु का वचन का प्रचार करते, अपना कार्य करते, और शाम को एकत्रित होते अलग अलग झुंडों में, और प्रभु के सामने रुक करके वो रोटी तोड़ते थे और दाखरस पीते थे, जो भी पेय उनका होता था, और कहते थे ये प्रभु यीशु मसीह का बदन है, ये उसका लहू है। अब तो अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग प्रकार की परिपाटी है। कहीं कहीं ऐसे भी है जहां पर हर रविवार को प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं और वो कहते हैं कि हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, आराधना को ये कहते हैं। कई कई स्थान ऐसे जहां पर महीने में एक बार और अलग अलग संस्थागत कलीसियाओं में अलग अलग रूप से हम इसको मानते या देखते हैं, लेकिन इसका जो मौलिक अर्थ है, जो इसका जो बेस लाइन है, वो ये है कि प्रभु की देह है जो हमारे लिए तोड़ी गई क्रूस पर, ये उसका लहू है जो हमारे क्रूस पर उसके द्वारा बहाया गया। हमारे इस मेज पर आने में दो बातें सम्मिलित हैं। पहली बात हमारी अयोग्यता और हमारा उस पर भरोसा, दो मुख्य बातें। जब हम उसकी मेज में आते हैं, व्हेन यू कम टू सेलिब्रेट दिस होली यूकरिस्ट, वी रियलाइज, एक्नॉलेज our unworthiness, that Son of God died for us. स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, इसको हम याद करते हैं। और दूसरी बात, हम इस बात को याद करते हैं, बताते हैं कि हमारा भरोसा पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से उसके लहू पर है, उसके हमारे लिए दिए गए उस एक्सपिएशन में है, हमारे लिए उस बलिदान में है, जिसके द्वारा हमारे पाप
क्षमा हो जाता है, हम जीवित हो जाते हैं। यदि हम वास्तव में परमेश्वर की संतान है तो हम हियाव के साथ उसके साथ संगति रखने और उसके शक्ति पाने के लिए आते हैं। हम उसके विश्वासी हैं तो उसकी संगति में हम लाए जाते हैं ताकि उस ताकत को, सामर्थ को प्राप्त करें जो प्रभु अपने वदन के द्वारा और अपने लहू के द्वारा हमें प्रदान करता है। आज भी वो उस लहू में वही ताकत है जो 2000 साल पहले थी। मित्रों, अगर आप कभी कभी आपने देखा होगा जब कोई ऐसे लोग आते दुष्ट आत्मा ग्रसित, और हम जो पासबान है या हम जो प्रचारक उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो सबसे ज्यादा चिल्लाहट उनके जीवन में तब आती है उस व्यक्ति के, चाहे भाई चाहे बहन है, जब हम बाइबल के लेकर उनके सर पर रखते हैं या क्रॉस को बनाते हैं। वो कहते इससे हमें जलन होती है, ये हटा दो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू की ताकत की सामर्थ पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे ही है। शैतान किसी और बात से शायद ना डरे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के नाम से वो डरता है, कांपता है, उसके आगे जा नहीं सकता है। अब बहुत से बार जब हम ऐसा करते हैं तो वो आत्मा बिना किसी और प्रतिरोध के भागकर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू की ताकत है। उस ताकत के सामने कोई ताकत, कोई सामर्थ कार्य कर नहीं हो सकती। इस बात को हम समझे और अच्छे से जाने। हम उसके लहू में और उसके बदन में भाग लेते हैं। वो चाहता कि हम स्वर्गीय पिता की मेज में उस मेज से भय के योग्य उसके पीछे चलते रहें। परमेश्वर का भय हमारे मन में पाया जाए, हम आगे चल करके आगे भी उसमें बढ़ते रहें, उसमें उन्नति करते जाएं। परमेश्वर हमें बुलाता है और हमें इस संगति के आनंद से इनकार नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हम जब उसके पास आते हैं तो जब हम अपने आप को जांच कर उस परिपाटी में या प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो प्रभु उसके लिए हमें शांति प्रदान करता है। इसलिए हम जो पासबान हैं, जब आप प्रभु के वेदी से उठकर जाना चाहते उसके पहले हम 2 मिनट रुककर आपको कहते हैं प्रभु की शांति आपके साथ हो। क्योंकि प्रभु के वदन में भाग लेने के बाद, उसके लहू को लेने के बाद प्रभु हमें अपनी शांति से परिपूर्ण करता है और हमारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेता है और हमें शांति प्रदान करता है, वैसी शांति जो जगत हमें दे नहीं सकती। डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू गो आउट आफ्टर टेकिंग द कम्युनियन, the pastor who is leading in that holy Eucharist, or leading you in that holy Eucharist, he always say or she always say, may the peace of the Lord Jesus be with you. प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ रहे, क्योंकि उसकी शांति, वो जो शांति का राजकुमार है, जब हमने उसके बदन में भाग लिया अपने आप को, या हमने उसके लहू में भाग लिया, तो उसकी शांति से हमें परिपूर्ण करता है और ये एक वास्तविकता है। अब तीसरी बात हम देखेंगे कि इस प्रभु भोज में कौन भाग ले सकता है। हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस होली कम्युनियन? केवल वे लोग जो परमेश्वर के परिवार में उत्पन्न हुए। ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के परिवार में जिन्होंने जन्म ग्रहण किया है और जिनको प्रभु की संगति में उसके साथ मेज पर बैठने का अधिकार है। अविश्वासी और स्वाभाविक रूप से मनुष्य जो अपने जीवन में चलते हैं वो उसमें भाग नहीं ले सकते। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 21 पद पढ़ लीजिएगा। लेट अस रीड, यू कैन रीड इन योर टाइम 1 Corinthians chapter 10 verse 21, that anyone who has not accepted the Lord in his or her life cannot participate or take part in this holy communion. This is only for those who have accepted the Lord in their lives, have been baptized, or in the mainline church we say has been confirmed, is only eligible to come before you in that and participate in that holy communion. इस बात को अच्छे से जाने। कई बार हम कलीसिया में देखते कि कोई भी आ रहा है, जी नहीं, ये ऐसा नहीं। इसलिए हम पासबान बार बार कहते कि आप वही आइए जिनको प्रभु ने अनुग्रह दिया है, जिन्होंने प्रभु को जाना है, जिनके पाप क्षमा हुए हैं, बपतिस्मा लिया है और इस दृढ़ीकरण के प्रतिक्रिया से या प्रक्रिया से निकल हैं, वही ले, ताकि प्रभु के आशीष को प्राप्त कर सके। इस बात को हमें जानना है। कुछ कलीसियाओं में ऐसा नियम बनाया गया है कि केवल बपतिस्मा प्राप्त सदस्य प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकांश सुसमाचार के प्रचार के करने वाले कलीसिया में और ऐसे भी वे लोग उसमें भाग ले सकते हैं जो प्रभु के द्वारा जिनको क्षमा प्राप्त हुई है।
इसलिए गैर विश्वासी वचन के आधार पर इसमें भाग नहीं ले और नहीं लेते, हम जानते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा अनजाने में किया है तो प्रभु हमें क्षमा करता है। हम इस बात को जाने कि क्या प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया और मैं उसका बेटा है, बेटी हूं, उसका पुत्र है, पुत्री हूं, उसके राज्य का, उसके परिवार का क्या मैं सदस्य हूं। इस बार पर हमें ध्यान देने और गौर करने की आवश्यकता है। चौथी बात, प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हमें आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु के भोज में भाग लेते हैं या प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है कि जब हम उस भोज में भाग लेते हैं तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। इसलिए यहां लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु के रोटी को खाए और उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए हम अपने आप को जांचें और इस रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए। There is a need of self examination. When we take this, when we partake in this Holy Communion, we need to seriously examine ourselves, re-examine ourselves. कि हमारा अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पाप तो नहीं है जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। हमें उसके लिए माफी मांगने की आवश्यकता है। चाहे हमारे दिमाग में ऐसी बात है, चाहे हमारे मन में ऐसी बात है, बदले की भावना या कोई ऐसी भावना है, या हमारे जीवन में जिसको प्रभु का आत्मा हमें बताता है, हमें उस समय उसके लिए माफी मांगने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु के इस मेज में जब हम भाग लेते हैं तो उसके आशीष को हम प्राप्त कर सके। प्रभु के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थी 11:28 में, वी रीड इन 1 Corinthians chapter 11:28, मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए। वी रीड अबाउट दैट इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, that we need to examine ourselves. Verse 28, let a person examine himself or herself, then and so eat of the bread and the drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drink judgment on himself. That person brings the judgment of God in herself or himself. ये वचन की शिक्षा हमें इसको बहुत ध्यान से देखना मित्रों। कई बार हम इस बात को गौर नहीं करते हैं और हम ऐसे इसको भोज में भाग लेते हैं, प्रभु भोज में भाग लेते हैं। हम सोचते हैं कि इससे हमें आशीष मिल गई। आशीष नहीं मिली, हमारा न्याय के लिए हमने एक पॉइंट और दे दिया परमेश्वर को। इसलिए हमें दीनता से आना है और अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु के उस मेज में भाग लेकर के उसके आशीष के हकदार हम हो जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां लिखा है, अपने आप को परखो, विश्वास से में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। यू नीड टू रियली एग्जामिन आवरसेल्फ। 2 कुरिन्थी 13:5 में लिखा है कि हम अपने आप को जांचें कि हम विश्वास में है कि नहीं। और फिर भजन 26:2 में लिखा है, Psalm 26:2 says, हे परमेश्वर मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। लॉर्ड सर्च मी एंड नो माई हार्ट। Where we read in Psalm 26:2, हमें अपना को जांचने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु हमारे मनों को शुद्ध करे और पवित्र करे। जब हम उसे भाग लें तो उसके आशीष को हम प्राप्त कर सके। जब हम उसमें भाग लें तो परमेश्वर हम आशीषित कर सके। फिर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 139 Psalm verse 23, हे ईश्वर मुझे जांच और जान ले कि मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। लॉर्ड सर्च मी एंड नो माई थॉट्स टुडे। Psalm 139 verse 23। तो हमें अपने आप को जांचने और उसके सामने आने की आवश्यकता है। प्रभु अपने वचन की खोज करने के लिए हमारे मन में भूख और प्यास उत्पन्न करता है जब हम अपने आप को जांचते हैं। हमें अपने आप को जांचने और प्रभु के सामने परखने की आवश्यकता है जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं। एक और मुख्य बात जिसको हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि मैं किस प्रकार अपनी जांच कर सकता हूं। हाउ कैन आई सर्च माई लाइफ। स्वयं में कुछ बातें हैं जिसको हम देखेंगे। अब यहां पर कुछ सवाल हैं जांचने के संदर्भ में। पहला सवाल, क्या मैं वास्तव में और सच्चाई के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पर विश्वास करता हूं? क्या मैंने उस पर विश्वास किया है, पीड़ितों के काम
16 अध्याय 31 पद के अनुसार क्या मैंने प्रभु को जाना है, उस पर विश्वास किया है, इस पर हमें गौर करने की आवश्यकता। फिर एक और सवाल, क्या मैंने वास्तव में परमेश्वर के परिवार में नया जन्म पाया है? यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 7 पद। एम आई इन हिज फैमिली बाय द वर्च्यू ऑफ माई रिसीविंग द न्यू बर्थ? इस पर हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई पाप है जिसका मैंने अंगीकार नहीं किया? चाहे हमारे मन में कोई घमंड है, आत्म अभिमान है, लोभ है, आलस्य है, अनाज्ञाकारिता है, पाप से प्रेम है, संसार के प्रति प्रेम है, क्या मेरे विचार का जीवन शुद्ध है, क्या मैं निरंतर यीशु की साक्षी देता हूं? तो इन बातों को हमें अपने सामने रख करके अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। व्हाट आर द थिंग दैट वी नीड टू एग्जामिन आवरसेल्फ? Am I a greedy person? Am I a person with all type of pride in my life? Am I a person of laziness? Am I a person which do not obey God? And I love sin more than God and His holiness? Am I a person who love the world and the things of this world? Is my thoughts are pure and holy? Am I really constantly living a life of witness? Am I read His word daily and pray to Him every time? And all these things that connected with this need to be re-examined. Therefore, this is very, very important institution when we join. We have joined already, but when we take every month or any time that we are called by the leader or our pastor, we need to examine ourselves, self-examine ourselves. Then the other thing, the question is, क्या मैं हृदय से अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं? अंगीकार बिना पश्चाताप एक मजाक या दिखावा है। One of the things that we need to understand here, that is the Holy Spirit is giving His testimony in my heart that I am a child of God. And if I have repented, truly, there's assurance that He has forgiven us completely. So this need to be understood within in our heart. Another question, क्या मैं अपने हृदय में अधिक पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करता? Am I willing to decide to live a holy life, a victorious life, a life more than a conqueror in Christ? Then, क्या मैं परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति से और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रखता हूं? लूका उसका 10 अध्याय 27 पद। Am I willing to love the Lord with my whole heart and mind and soul, so that He is pleased, He pleases, and He is pleased with my life, He is happy with my life, He is satisfied with my life and commitment? And read about that in Luke Gospel chapter 10 verse 27. The another question can be asked by ourselves, and that is, क्या मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता हूं? Am I loving my neighbor as my own? We don't think sometimes, but this is what the Lord says in Luke 10 chapter 27 verse. एक सवाल और है, क्या मैं उन लोगों को क्षमा कर दिया है जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है? Have I forgiven those who have sinned against me? In the Lord's Prayer we say this every day, कि आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें जैसे मैंने अपराधों को क्षमा किया है. But practically sometimes it doesn't happen. We take revenge, we keep revenge in our mind long time and think selfish things. The word of God says that we need to forgive our enemies, and those who have wronged against us, we should forgive them. असली यहाँ पर जो पद है आप पढ़ सकते हैं बाद में, मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14 से 15 और मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय 23 से 24 पद. या मैं यूं कहूं आपके सामने, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 23-24 और मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 14 से 15. और आखिरी सवाल, क्या मैं प्रभुभोज की तैयारी के लिए हमेशा आज्ञाकारी रहता हूं? When I prepare myself, am I willing to obey God so that He may direct my life and I am blessed because of His mercy and kindness? हम इस बात पर गौर करने की आवश्यकता.
अब आखिरी बात, प्रभु भोज के लिए जो एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में। रोटी और दाखरस ये दो पदार्थ हैं जिनका शरीर लहू के प्रतीक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। बहुत सी कलीसियाओं के अंदर वेफर्स दिया जाता है, जो हमें हाथ में दिया जाता है। वेफर्स जो एक रोटी का टुकड़ा होता है और उसको राउंड उसका शेप होता है, और फिर हम दाखरस लेते हैं उसके लहू के सिंबल के रूप में। ये तत्व अपने आप में उसका लहू और उसका बदन नहीं है। दिस थिंग्स इट डज नॉट बिकम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, बट वी टेक दोज थिंग्स इन रिमेम्बरेंस। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो सारी चीजें उसका बदन बन जाती हैं और लहू बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वी टेक दोज थिंग्स a symbol that we are taking his body and his blood. It remained the bread and wine, but we symbolize that I am taking by faith his body and his blood. I am participating in the fellowship of his body and his blood. And this is important for us to understand. इस बात को हमें बहुत ही अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इसको अंग्रेजी में कहा गया ट्रांससब्सटेंशिएशन। हमें इस बात को ध्यान देना कि वो चीजें ना तो यीशु मसीह की देह बनती है और ना वो लहू बनता है, क्योंकि वो तो दाखरस है, लेकिन हम यादगारी में लेते हैं। इसको हमें बहुत ही अच्छे से सीखना समझने की आवश्यकता है। हम इन तत्वों में किसी रहस्यमय शक्ति या तत्वों में परिवर्तन का स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं। ये कभी तत्व जो मैंने कहा ये उसके बदन नहीं बन जाते हैं और उसका लहू नहीं बन जाता, लेकिन यादगारी में लेते हैं। वी रिमेंबर दैट ही डाइड फॉर मी वन डे, थ्रू 1000 years ago he died for me. So in remembrance we take this and we partake and we are blessed. रोटी अखमीरी है जो इस बात का चिन्ह है कि पाप दूर कर दिया गया। The bread that we take, and that first time when Jesus celebrated the last supper with his disciple, they took the unleavened bread. What is the meaning? It is holy, symbolizing that he was holy. And when we partake in that bread, we are called to be holy with him. हम पवित्रता के लिए बुलाए जाते हैं प्रभु की संगति में रह करके। इसमें हम ये प्रकट करते हैं कि उसका लहू जो हम लेते हैं उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाता है और हम पूरी तरह से प्रभु के योग्य बनते, उसकी संगति में रहने के, उसमें बढ़ते चले जाते हैं। मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। और हमने आज बहुत सारी बातें प्रभु भोज के बारे में देखी। मैंने संक्षेप में आपके सामने बातों को रखी है, क्योंकि मैंने सोचा कि जब हम पूरी शराकत में आते हैं तो हमें प्रभु भोज के विधि को जानने की आवश्यकता है। प्रभु भोज की इस विधि को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु ने उस रात को जो पकड़वाए जाने को था, उसमें आखिरी बार अपने शिष्यों के साथ उपरोटी कोठरी में फसह का पर्व मनाया। My friends, we remember that 2000 years ago our Lord celebrated the festival of Passover with his disciple on the upper room, and thus instituted the institution of Holy Eucharist or Holy Communion. परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे कि आप दिल की गहराई से इसमें भाग लें और प्रभु की महिमा कर सके। और आपका कलीसिया में पूरी शराकत में आना या भाग लिया जाना या भाग लेना आपके द्वारा यह धन्य हो आपके लिए। आपका जीवन, इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे हैं, आने वाले समय में आप परिवार के रूप में होंगे। आपका परिवार धन्य हो, आपके बच्चे धन्य हो, आपका पूरा परिवार, पूरा खानदान धन्य हो, ताकि हम निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाए और प्रभु की संगति आपके द्वारा दुनिया के अंदर फैल सके। आपकी गवाही ऐसी गवाही हो जिससे प्रभु की महिमा हो सके। और अंत में आप इस कलीसिया के एक ऐसे सदस्य बने जो व्यवहारिक रूप से प्रभु की आज्ञा को मानने वाले, प्रभु के भय में चलने वाले और प्रभु के लिए सुसमाचार का प्रचार करने वाले बने। Dear friend, may God help you as you are now being taken into the full membership of Methodist Church in India, and precisely this local church, that is Apostles Methodist Church. Maybe your life and testimony bring glory, honor to the name and Savior, name and of the Lord and Savior of our
life that is Lord Jesus Christ. प्रभु आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करें. लेट अस प्रे. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए जो हमने देखा. प्रभु इसके बारे में प्रभु ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है. हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु कि हमारे ये प्रियजन, हमारे जवान, हमारे प्रिय लोग प्रभु, जबकि प्रभु यीशु मसीह आपकी कलीसिया के पूरी शराकत में ले गया, अपने आशीष दे प्रभु और इन आशीष का कारण बनाए. Lord, we pray for those who are being taken into the full membership in the church or Methodist Church in India. They may live their life with example, in a way that so that they become a real example for people, not only in church but outside also, in our workplace also, in our travels also, in our journeys also, in our every aspect of life. Help me, Lord, to be witness of your good news. Be with us and guide us. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of you now and forevermore. Amen. प्रभु यीशु ही प्रभु है. प्रभु आपको आशीष, आपकी सहायता करे. और मेरी आशा है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा है. अगर फिर भी आपके पास कोई प्रश्न है, आप जानना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमसे अवश्य पूछें, हम आपकी सहायता करेंगे. पर मैं ये चाहता हूं कि आप में से हर एक प्रभु भोज के विधि के एक एक बात को अच्छे से समझें और जानें, ताकि प्रभु के प्रेम में आप बढ़ने वाले बन सके. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली, वेरी क्लियरली द बिब्लिकल मीनिंग ऑफ दिस होली यूकरिस्ट और होली कम्युनियन. एंड द लॉर्ड कीप अस हम्बल, dedicated and sincere in our Christian life of worship and family and in his kingdom now and forevermore. Thank you and God bless you.